My young friends, today is indeed inspiring. We are in the business of energy, and I must admit, I have never felt this energized before. This is the power of your generation. I look forward to each of you, and you are indeed some of the best talent our nation has. My intent is to accomplish two things. First, talk about my personal journey. I decided to come this time, hoping that if my story could set an example for even a handful of you, I would live satisfied that I had some impact. Second, paint the picture of the incredible opportunity ahead of you. Now let me talk about my personal journey that is tightly interwoven with the India growth story. I also hope embedded with this story you found some nugget that inspire you to do your part, to become an entrepreneur and work to build a greater India. I was 16 years of age when I left studies. I was a good student, but because of my family circumstances, I had to drop out of school. I left home having learned two core values from my father. First, commitment to the promises you make to yourself, and commitment to the promises you make to others. Both of these have to be in absolutely harmony. Second, avoid over-analysis of situations and have the courage to make quick decisions based on your natural instincts. I have followed both this value in every action I have taken. Having left studies, I moved to Mumbai in 1978. Landing in Mumbai with nothing in my pockets was exciting as well as daunting. I wanted to be an entrepreneur, the raw optimism of a 16-year-old boy. My first step in my entrepreneurial journey was learning to assort and do the valuation of diamonds. In less than 3 years, I had started my own diamond trading brokerage. I still remember my first trade with a Japanese buyer and my commission of rupees 10,000. I felt terrific that I had created this opportunity by myself, and for a teenager, there could not have been a greater confidence booster to get started. An essential part of my learning throughout is that everyone gets opportunity in their life. So will you. However, the two questions you will need to answer: can you connect the dots early enough to recognize the opportunity coming at you? And then, do you have courage to relentlessly chase it down? Let me elaborate how essential these two principles have been to me. It was 1984, the new phase of India, open to economic liberalization. A slew of reforms were announced. This was an opportunity I acted on instantly to start my import business, which in turn laid the foundation for the global trading business I was to build. In 1989, here again, I saw an opportunity to move quickly and establish a global trading house dealing in polymers, metals, textiles and agro products. We grew so rapidly that within 2 years, we had become the largest trading house in the country, overtaking long-established market leaders. Thereafter, in 1994, we executed on our first IPO. While the IPO was successful, it opened my eyes to another opportunity. All that we had was raw enthusiasm. All that we had was a belief in ourselves. Rest is the history. My young friends, less than a decade, we were largely known as a trading house and a one-pot company. Today, we are the country's largest ports and logistics business, largest private thermal power business, largest private transmission business, largest renewable energy business, largest coal trading business, largest mining business, and largest agro business, all in less than 10 years.
Behind each one of these are inspirational story of guts and sacrifices people have made to make all this happen. Along this journey, we also built the world's largest thermal power plant site within the private sector, the world's largest import coal terminal, and the world's largest single location solar generation farm. If I, against all odds, made it as an entrepreneur, there is no reason why there cannot be 1,000 greater entrepreneurs amongst you. My young friends, we live in a blessed country. You are at a point of time where the future of our nation is full of incredible growth opportunities. Let me now elaborate on some of my fundamental learnings that I hope will be useful to you. First, have a personal purpose that drives you. It is said in the Gita, it is better to live your own destiny imperfectly than to live an imitation of somebody else's life with perfections. Purpose is identified as something that you see as your destiny 10, 20 or 30 years from now. In my case, the purpose that drives me is that of our nation building. Every infrastructure opportunity I have created is associated within this purpose. We have tried to build world-class facilities India can be proud of. It is my power of purpose that keeps alive my will to win. We also created significant shareholder value. An investor owning one share of Adani Enterprise at its 1994 IPO price of rupees 150 would today be holding a share worth about rupees 1 lakh. This translates to a return of over 650 times in less than 25 years. My young friends, the rate at which science, technology, economics and geopolitics is merging, the only way you stay on top of this by ensuring you are continuously learning. Even today, I try to spend a couple of hours reading every day, listening to people from sectors that I know little about, making a couple of trips to Silicon Valley to see how game-changing technologies are impacting every facet of our life. All this allow me to paint for myself the larger picture about where the next set of opportunity will be created. Therefore, develop a passion for learning. This is the only way you never cease to grow. Keep in mind that for every one of you here, there is a million out there who are less fortunate. Therefore, whatever you do, do it keeping your greater purpose in mind. Do it for your parents who have invested their life in you. Do it for your teachers who have selflessly worked for your success. And do it for that child who does not have the privilege of studying in a college like you. My young friends, I wish you the best. May all your aspirations come true and may you take our nation, India, to great heights. Thank you. Jai Hind. गौतम अडानी, जिनकी नेटवर्थ 2020 में महज $9 बिलियन थे, वो आज सिर्फ 20-22 महीनों में $110 बिलियन कैसे पहुंच गई। और अपनी इस नेटवर्थ से उन्होंने न सिर्फ भारत के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी जी को पीछे छोड़ा, बल्कि अभी कुछ समय पहले वे बिल गेट्स और वॉरेन बफे जैसे फेमस बिलियनियर्स से भी आगे निकल गए थे। तो क्या अडानी के इस सफलता में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का हाथ है? अडानी जी के नेटवर्थ के बढ़ने का मेन रीजन क्या है और क्या यह तरक्की परमानेंट है या फिर गौतम अडानी वापस से नीचे आ जाएंगे? इन्हीं सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो फिर चलिए अब इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम लोग गौतम अडानी का कंपैरिजन हमेशा मुकेश अंबानी के साथ करते हैं, लेकिन सही मायनों में इनकी तुलना मुकेश अंबानी से नहीं बल्कि धीरूभाई अंबानी जी से करनी चाहिए, क्योंकि गौतम अडानी भी धीरूभाई अंबानी की तरह ही फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं। यानी कि गौतम अडानी जी के पास आज जो कुछ भी है वो उनके पिता या पुरखों से विरासत में नहीं मिला, बल्कि इस पूरे बिजनेस एम्पायर को उन्होंने खुद खड़ा किया है। अब चलिए इस बात को समझने के लिए हम आपको गौतम अडानी की शुरुआती लाइफ और उनकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताते हैं। असल में दोस्तों, गौतम अडानी जी 24 जून 1962 के दिन गुजरात के अहमदाबाद शहर में पैदा हुए थे। इनके पिता शांतिलाल अडानी जी का गुजरात में ही कपड़े का एक छोटा सा बिजनेस था
लेकिन गौतम अडानी को अपने पिता के बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि वो अपनी लाइफ में शुरुआत से ही कुछ अलग और कुछ बड़ा करना चाहते थे। यहाँ तक कि इसके लिए उन्होंने अपनी बीकॉम की पढ़ाई को भी बीच में ही छोड़ दिया था और 1978 के दौरान वह मुंबई जाकर डायमंड सॉर्टिंग का काम करने लगे थे। इसके बाद से 1981 में इनके बड़े भाई मनसुख भाई अडानी ने इन्हें वापस अहमदाबाद बुला लिया, क्योंकि उन्होंने प्लास्टिक का एक नया बिजनेस शुरू किया था और इस बिजनेस के लिए उन्हें अपने छोटे भाई गौतम की हेल्प चाहिए थी। दरअसल इस बिजनेस में उन्हें हर महीने 20 टन पीवीसी की जरूरत पड़ती थी, जो कि भारत में उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। इसीलिए गौतम अडानी और उनके भाई ने यह फैसला लिया कि वो बाहर के दूसरे देशों से पीवीसी को इंपोर्ट करेंगे। और दोस्तों, ये पीवीसी इंपोर्ट करने के दौरान ही गौतम अडानी को पहली बार इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के नियम व कानूनों की जानकारी मिली थी और इसी से उन्हें यह समझ आ गया था कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस किस तरह से किया जाता है। और दोस्तों, अपने इसी एक्सपीरियंस का ही फायदा उठाकर साल 1988 में उन्होंने अडानी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड नाम की एक कंपनी शुरू कर दी और इस कंपनी को शुरू करने के बाद से ही गौतम अडानी ने फिर कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और यही कंपनी अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी बनी। अब अगर आज की बात करें तो अडानी ग्रुप के अंदर बहुत सारी अलग अलग कंपनी शामिल हैं, जो कि अलग अलग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में डील करती हैं। हालांकि चलिए हम आपको अडानी ग्रुप की कुछ सबसे अहम कंपनीज के बारे में बताते हैं, जिसकी बदौलत आज गौतम अडानी सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड की, जो कि इस ग्रुप की सबसे पहली और सबसे बड़ी कंपनी है। ये कंपनी मुख्य रूप से कोल ट्रेडिंग, कोल माइनिंग और एयरपोर्ट ऑपरेशंस जैसे काम करती है। इसके बाद से अडानी ग्रुप की दूसरी बड़ी कंपनी है अडानी पोर्ट्स एंड एसईजी, जिसे शॉर्ट में APSEZ भी कहा जाता है। अब जैसा कि आप इसके नाम से ही समझ गए होंगे कि ये कंपनी पोर्ट ऑपरेटिंग का काम करती है और ये इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर कंपनी है। इसके अलावा इनकी अडानी पावर कंपनी पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। अडानी टोटल गैस बड़े शहरों में गैस डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस करती है। अडानी ग्रीन एनर्जी पूरी दुनिया में ही सोलर एंड विंड एनर्जी जनरेशन का काम करती है और अडानी विल्मर कंपनी एडिबल ऑयल बनाने का काम करती है। अब यहाँ पर आपकी हम जानकारी के लिए बता दें कि इंडिया में बिकने वाला फेमस फॉर्च्यून रिफाइंड ऑयल भी अडानी ग्रुप की इसी कंपनी का ही एक प्रोडक्ट है। और अभी हाल ही में अडानी विल्मर का IPO भी मार्केट में लाया गया था, जहां लोगों ने खूब पैसे इन्वेस्ट किए और कमाए भी। वैसे आपको भी लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियली स्टेबल रहने के लिए इन्वेस्टमेंट जरूर करनी चाहिए और जब स्टॉक मार्केट की बात आती है तो फिर इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए डीमैट अकाउंट जरूरी होता है। और दोस्तों, इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ 5पैसा को। ये वन ऑफ द लीडिंग एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डिस्काउंट ब्रोकर है, जहाँ पर आपको 0% ब्रोकरेज लगता है। साथ ही FNO एंड इंट्राडे में भी आपसे सिर्फ 20 रुपए हर ऑर्डर पर ही चार्ज किए जाते हैं। दोस्तों, इनका UI तो सिंपल है ही, लेकिन कस्टमर सपोर्ट भी हमेशा आपकी हेल्प के लिए तैयार रहते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको स्टॉक रिकमेंडेशंस भी मिलते रहते हैं। और आपको शायद पता ही होगा कि मार्केट के अप एंड डाउन सिचुएशन में इन्वेस्टिंग का सबसे अच्छा तरीका होगा SIP मोड, और इसी वजह से 5पैसा का वन ऑफ द बेस्ट फीचर है स्टॉक SIP। जब आप ऐप ओपन करके माई अकाउंट सेक्शन में जाकर स्टॉक SIP पर क्लिक करते हैं तो फिर यहाँ आपको दिखते हैं टॉप स्टॉक्स। और मान लीजिए आपको INFI में इन्वेस्ट करना है तो फिर आप मंथली, डेली, वीकली किसी भी लेवल पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको एक स्टॉक डेली खरीदना है तो फिर आप उसी के हिसाब से अपना स्टॉक SIP क्रिएट कर सकते हैं और इससे होगा यह कि मार्केट जैसा भी रहे आपको एवरेजिंग पर बेनिफिट मिलता रहेगा और लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा रिटर्न भी मिल जाएगा। तो फिर देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से अपना अकाउंट ओपन करिए और अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को बेहतर बनाइए। बहरहाल हम गौतम अडानी की जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, गौतम अडानी की सबसे खास बात यह है कि ये जो भी काम करते हैं वो नेशनल या फिर इंटरनेशनल लेवल पर ही करते हैं और यही वजह है कि आज उन्होंने जिस भी इंडस्ट्री में एंटर किया हुआ है ऑलमोस्ट उन सभी इंडस्ट्री में ही अडानी ग्रुप की कंपनीज नंबर 1 पर है। और इतना ही नहीं, गौतम अडानी अभी भी नई नई इंडस्ट्री में एंटर करके अपने बिजनेस को बहुत तेजी से एक्सपेंड कर रहे हैं। इनफैक्ट इस वीडियो को बनाने के दौरान ही गौतम अडानी ने $10.5 बिलियन की रकम में ACC और अंबुजा सीमेंट इन दोनों कंपनीज को एक्वायर किया है।
असल में शुरुआत से ही गौतम अडानी की यह स्ट्रैटेजी रही है कि जब भी उन्हें किसी इंडस्ट्री में प्रॉफिट दिखाई देता है तो फिर वो मौका मिलते ही उसमें एंटर कर लेते हैं। और यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में अडानी ग्रुप का बिजनेस बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफाई होते हुए दिखाई दिया है। खैर चलिए, ये तो हुई अडानी ग्रुप के कंपनीज और उनके बिजनेस की बात, लेकिन फिर सवाल यही रह जाता है कि गौतम अडानी के नेटवर्थ आखिर अचानक से इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई, क्योंकि उनकी ये कंपनीज तो कई सालों से चली आ रही है और ऐसा भी नहीं है कि इन कंपनीज के सेल्स रेवेन्यू या फिर प्रॉफिट में कोई बहुत बड़ा चेंज हुआ है। लेकिन फिर पिछले 2 सालों में ऐसा क्या हो गया कि इनकी नेटवर्थ $9 बिलियन से बढ़कर $125 बिलियन तक पहुंच गई थी। असल में दोस्तों ऐसा होने का रीजन यह है कि इन पिछले 20-22 महीनों में अडानी ग्रुप की कंपनीज के शेयर का प्राइस बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ा है। एग्जाम्पल के लिए अडानी टोटल गैस कंपनी की अगर बात करें तो मार्च 2020 में इसके एक शेयर का प्राइस सिर्फ 82 रुपए था, जो कि इस समय बढ़कर 2520 रुपए के आसपास हो चुका है। यानी कि इन 2 सालों में इस कंपनी का स्टॉक प्राइस करीब 3000% ऊपर गया है और ये वाकई में एक चौंकाने वाला नंबर है। और दोस्तों ठीक इसी तरह ही 1-2 साल के अंदर अडानी ग्रुप की हर एक कंपनी का शेयर प्राइस बहुत तेजी से बढ़ा और यही वो मेन वजह है कि गौतम अडानी की नेटवर्थ हमें एकदम से इतनी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दी है। लेकिन चूंकि उनकी ये नेटवर्थ कंपनी के स्टॉक प्राइस पर ही डिपेंडेंट है, ऐसे में आगे चलकर इन कंपनीज का शेयर प्राइस वापस से नीचे गिरता है तो फिर उसके साथ ही गौतम अडानी की नेटवर्थ भी कम होती चली जाएगी। इनफैक्ट 22 अप्रैल 2022 के दिन जहां उनकी नेटवर्थ $123 बिलियन तक पहुंच गई थी, वो आज घटकर $106.6 बिलियन ही रह गई है। यानी कि सिर्फ 25 दिनों में उनकी नेटवर्थ $17 बिलियन कम हुई है। और ऐसा होने का रीजन यही है कि उनकी कुछ कंपनी का स्टॉक प्राइस वापस से थोड़ा नीचे आ गया है। अब दोस्तों आपको ये जानकर काफी हैरानी होगी कि जो अडानी आज एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं, उनके कंपनी अडानी ग्रुप पर टोटल 2.22 ट्रिलियन रुपीस का कर्जा है और ये डेप साल दर साल बढ़ता जा रहा है। यानी कि गौतम अडानी जो नई कंपनीज खरीदकर अपने बिजनेस को तेजी से एक्सपेंड कर रहे हैं, उसके लिए उन्होंने अपनी जेब से कोई भी पैसा खर्च नहीं किया है, बल्कि उनका ये सारा बिजनेस डेप पर चल रहा है। और ये डेप ही वो मेन वजह है कि लोग उनकी सक्सेस के पीछे इंडियन गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर मोदी का हाथ मानते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट का साथ होने की वजह से गौतम अडानी को बड़े बड़े लोन और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन दोस्तों असल में सच्चाई यह है कि सिर्फ गौतम अडानी ही नहीं, बल्कि देश में मौजूद हर एक बड़ा बिजनेसमैन अपने स्टेट और सेंटर की गवर्नमेंट से हमेशा बना कर रखता है। फॉर एग्जाम्पल 1993 के दौरान गुजरात में जब कांग्रेस की सरकार भी थी, तो फिर उस समय के सीएम चिमन भाई पटेल ने गौतम अडानी को मुंद्रा पोर्ट पर जमीन 10 पैसे पर स्क्वायर फीट के भाव से अलॉट की थी। यानी कि जब स्टेट में कांग्रेस की सरकार भी थी, तब भी गौतम अडानी के रिश्ते उस गवर्नमेंट के साथ में अच्छे रहे थे। और फिर बाद में जब बीजेपी की सरकार आई, तो फिर गौतम अडानी जी के रिलेशन उनके साथ भी अच्छे ही रहे। अब दोस्तों बहुत से लोग जिन्हें लगता है कि मोदी जी या फिर बीजेपी के जाने के बाद से गौतम अडानी का बिजनेस फेल हो जाएगा, वो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि गौतम अडानी तो मोदी जी के पावर में आने से पहले भी अपना बिजनेस चला रहे थे और कल जब मोदी जी नहीं रहेंगे तब भी वो इसी तरह से अपने बिजनेस को ग्रो करते रहेंगे।